स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। यस्टरडे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो ये सारे हमने कर लिए थे फटाफट। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, वन मोर फॉर्मूला यू राइट। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे उसमें असेट अप्रोच। वन मोर फॉर्मूला for shareholders fund, and we name that formula as asset approach. कौन सा अप्रोच? तो उसमें हम लिखेंगे नॉन करंट असेट्स प्लस करंट assets that will give me total assets, that's my destination A, minus non-current liabilities and current liabilities, that's my destination B, total liabilities. So A minus B अगर हम करेंगे तो मुझे शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। A minus B अगर हम करेंगे तो we will get our answer, that is shareholders fund. Okay? Okay? फिर एक और फॉर्मूला लिखो वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द वर्किंग कैपिटल इज? वर्किंग कैपिटल इज व्हाट कि इन बिजनेस व्हाट डू वी वांट इज, व्हाट डू वी वांट कि भाई देयर आर लॉन्ग टर्म कैपिटल्स कि व्हिच विल बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हम फिक्स्ड एसेट्स और वो सब एक्वायर करेंगे। जबकि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए हमारे पास जो कैपिटल होना चाहिए इन ऑर्डर टू डू आवर डे टू डे ऑपरेशंस, उसके लिए जो कैपिटल है दैट इज माय वर्किंग कैपिटल। तो उसका फॉर्मूला लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स लेस करंट liabilities. Sure? Current assets less current liabilities. Come on beta, now keeping these two formulas, let's start our today's sums. Page number 247 पर चले जाएंगे, page 247, sum number 8. Let's start. Sum number 8. Let's start. From the following information, we need to calculate the current ratio and liquid ratio. Pranshu, what's the formula for current ratio? Current liabilities upon current assets. क्या है? क्या है? Current assets upon current. हाँ, current assets upon current liabilities. And yesterday we wrote a list कि what all things are to be included in current assets and what all things will be coming in current liabilities. And ideal क्या था? What was the ideal current ratio? 2:1. Liquid ratio में क्या है? What's the liquid ratio? Formula तो बता दो पहले. Liquid assets upon current liabilities. Now how do I get those liquid assets? Current asset minus stock minus prepaid expenses. So let's start. Let's start. Question number 8. We need to find current ratio and liquid ratio. So we'll write the formula first. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Okay. And then liquid ratio, we'll find it out. What's the formula for liquid ratio? liquid assets upon
current liabilities. Liquid assets upon current liabilities. Now what are we doing is we'll be reading out the sum. तुमको ऐसा लग रहा है सर सम क्यों नहीं रीड आउट करवा रहे हैं? अब सम को रीड आउट करने से पहले ऐसा दो बाइफरकेशन कर दो. मुझे करंट असेट्स चाहिए and then I want current liabilities. Yes or no? To make this bifurcation, current assets and current liabilities ka, we read the sum one by one. We decide whether it will go to current assets, whether it will go to current liabilities, या तो दोनों में से कहीं नहीं जाएगा. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए दो तीन आइटम ज्यादा दे दें, लेकिन हम कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाएंगे सर, डेफिनेटली. फर्स्ट they have given stock. आएगा किसमें 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 किसमें? करंट असेट्स. यस, लिखा जाए स्टॉक. But how much is my amount for stock? 3 lakhs. डेटा डेटा नहीं, जरा याद करो कल मैंने क्या लिखवाया था? डेटर माइनस बैड डेट रिजर्व. चेक करो यहाँ पर कुछ बीडीआर है सब में? डेटर माइनस बैड डेट रिजर्व है सब में है, तो वो भी लेना पड़ेगा ना बेटा. डेटर है कितने? डेटर 2,50,000 लेस बैड डेट रिजर्व हाउ मच? 20,000. So 2,30,000. Cash and cash equivalents. Current assets, yeah. Cash and cash equivalents, that are also my current assets. How much? 1,20,000. Then furniture. Furniture नहीं आएगा. Current asset. It's a non-current asset. It's a non-current asset. Fixed asset છે. बिल्लू बिल्लू. Bills payable. Liabilities. बहुत बढ़िया. Bills payable will go to current liabilities. Yeah. How much? 60. Short-term loan. Liabilities. Short-term loan liabilities. How much? 40,000. Bills receivable. Asset again. Very good. Bills receivable. How much is my amount? 75,000. Can I say have we taken bad debt reserve? Already done. Expenses paid in advance. बोले तो prepaid. It's a prepaid expenses. Expenses paid in advance. They're just trying to confuse us, but we know it's prepaid. What say? We have mastered our English. The next, creditors, liabilities. How much? 2 lakhs. Then outstanding expenses. How much? 50,50. बहुत बढ़िया. But give me the total current assets. 7 lakh? 7,85,000. Current liabilities? 3,50,000. So can I say, are we ready to put the values in the formula? Let's start. 7,85,000 divided by 3,50,000, that comes to 2.24 is to 1. The formula is 2.24, and whatever the answer you get it is 2.24 is to 1. जब भी ऐसा आंसर आएगा is to 1 हमको लिख देने का, because the ratio we represent in proportion. So इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है कि कंपनी के पास 1 रुपए की लायबिलिटी है, जब उस लायबिलिटी को पे करने के लिए we have assets of 2.24 rupees. तो that's good. कंपनी का अच्छा है सॉल्वेंसी पोजीशन, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है. अब मुझे बताओ लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी वी फाउंड इट आउट. व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड नाउ? So let's find it out. Liquid assets. Liquid assets. What will be the formula?
करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड expenses. But what's my current assets? 7,85,000. स्टॉक कितना बड़ा? स्टॉक 3 लाख. प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 60. 4,25,000. So let's put it in the value. 4,25,000 divided by 3,50,000. 1.21:1. That's my liquid ratio. 1.21:1. Okay. Let's start the 9th one. But these all are now very short sums. We'll able to complete in 2 minutes. Okay. If you learn the formula, if you know what all things will be included wherein, okay? Let's start. The first. Question number 9. From the following information of H Limited, again, क्या ढूंढना है? Debt equity ratio. Debt equity. First of all, what was the formula? Debt equity. Debt upon? But in that debt, what am I supposed to take? Long-term liabilities. Very good. In that debt, we are supposed to take long-term liabilities. And shareholders fund का formula क्या था? Equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus minus fictitious asset. Yes or no? वो जो हमने वो फॉर्मूला देखा उसको हम कहते हैं इट्स अ लायबिलिटी अप्रोच फॉर्मूला. Which formula was that? Liability approach. And आज हमने एक और फॉर्मूला सीखा. That was which approach? उसका फॉर्मूला देखो क्या है? Non current assets plus current assets minus non current liabilities minus current liabilities. So there is one more formula also. But in this sum, tell me, liability approach वाला है कि asset approach वाला है? सम को पढ़ो ध्यान से. टेल मी, लायबिलिटी अप्रोच वाला है फॉर्मूला कि एसेट अप्रोच? लायबिलिटी अप्रोच है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. डेट इक्विटी रेशियो. राइट डाउन द फॉर्मूला. व्हाट्स द फॉर्मूला? डेट अपॉन शेयरहोल्डर्स फंड. Debt upon shareholders fund. So again we make 2 bifurcation debts के जिसके में मैं सिर्फ LTL लूंगा, long term liabilities. I would take only LTL, long term liabilities, and then we are also finding out shareholders fund, but write it down in the bracket. This will be my liability approach वाला formula. Which approach? Liability approach formula. Okay. But if we start reading the sum and we start bifurcating at that time only, we don't waste our time. Okay, we'll first bifurcate, then we'll do it. Okay. First, long-term liabilities. Will it come? Yes. Where? Debts में. Very good. लिखा जाए. Long-term liabilities will come in debts. How much is my amount? 8 lakhs. 8 lakhs. Okay. Then. Will it come long-term provisions? Yes. Long-term provisions that will also come. कितना है? 4 lakhs. Then next क्या है? Debit balance of P&L. अब देखो लायबिलिटी अप्रोच का हमने कल फॉर्मूला क्या देखा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स माइनस. तो ये P&L जो है डेबिट बैलेंस, दैट्स माय. तो उसके बाजू में पेंसिल से लिख दो इट्स अ फिक्टिशियस एसेट. FA फिक्टिशियस एसेट वो हम लिखते हैं. ठीक है. बिल्स पेएबल क्यों नहीं आएगा भाई? इट्स अ करंट लायबिलिटीज. इट्स अ
whereas we want here non current long term liabilities चाहिए, એટલે bills नहीं आएगा। मतलब तुम समझ रहे हो, एक या दो इंफॉर्मेशन तो ऐसी होगी जो अपने काम की फिर भी वो दे देंगे, लेकिन अपने को इग्नोर मारना है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा? यस ऑफ कोर्स, लिखा जाए। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच इज माय अमाउंट? इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। प्रेफरेंस आएगा? ऑफ कोर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। देन उसके बाद क्या दिया है? क्रेडिटर्स। Creditors. Why? Can I say it's a current liabilities? Current liabilities. Outstanding expenses. Current liability. उसको भी नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ से बेटा वो P&L वाला माइनस करेंगे ना, fictitious asset. So यहाँ से माइनस कर दो P&L का डेबिट बैलेंस। रिजर्व्स एंड सरप्लस कुछ भी नहीं है, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L वो माइनस हो जाएगा 50,000। सो बेटा ये माइनस करो और ये टोटल मारेंगे। दिस इज 12 लाख एंड दिस इज 950 एंड लेट्स बेटा नाउ पुट द वैल्यूज। 12 लाख डिवाइड बाय 9 लाख 50 1.1 क्योंकि इसका आंसर भी प्रोपोर्शन में ही आता है। इट्स 1.26:1। ठीक है। अब बड़ा क्वेश्चन नंबर 10 का मैं अगर तुम्हें हिंट दे दूं तो तुम क्या आंसर लेके आ पाओगे? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, खाली 4 ही आइटम दिया है। कितना आइटम है? 4 आइटम ही है। देखो सिर्फ ओनली 4 आइटम्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेट इक्विटी। तो चलो फाइंड आउट करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। राइट द फॉर्मूला फॉर सम नंबर 10। Debt equity ratio, but what will be the formula? Debt upon shareholders fund. लेकिन जो डेट है उसमें कौन सा डेट लेंगे? LTL, long term. We would take LTL, that will be long term. Yes or no? बहुत बढ़िया। तो again make 2 bifurcation, debt and shareholders fund. Again बेटा make 2 bifurcation, debts and shareholders fund. Now read the information, जो 4 information दी है। Tell me liability approach लूंगा कि asset approach? लिख लो ब्रैकेट में, it will be asset approach. It would be definitely asset approach. Okay, so let's start. First, पहला डेट्स लगी रही है। डेट्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा? यस, लिख लो। हम पहले डेट्स लिख ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएगा? यस, तो वो लिख लेंगे। कितना है? 8 लाख। देखो करंट लायबिलिटीज तो ना आवे और असेट्स भी ना आवे, तो उन दोनों का टोटल कर दो। कितना आ रहा है? 14। But you are getting 14 lakhs? बहुत बढ़िया। अब शेयर होल्डर्स फंड के साइड चले जाओ। असेट अप्रोच। असेट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है भाई? नॉन करंट प्लस करंट विल गिव मी, देखो वहां पर पहले से ही दे दिया है टोटल असेट, उसमें से मैं माइनस क्या करूंगा? नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। इज देयर एनी करंट लायबिलिटीज गिवन? इज देयर एनी नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन? वो सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या हैं? नॉन करंट है। तो चलो लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड में हेडिंग मारा असेट अप्रोच, उसमें लिखो टोटल असेट्स। टोटल असेट्स 30 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 4,50,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब उसमें हाइफन करके लिखो, नॉन करंट लायबिलिटीज में हाइफन करके लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख के एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 8 लाख की।
सो बेटा माइनस करके जरा बताओ तो कितना आ रहा है। सो डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, डेट कितना है बेटा? डेट 14 lakhs and shareholders fund 11 lakh 50, 1.22 1.22:1, 1.22:1. सम नंबर 11 खुद से करेंगे। सम नंबर 11 खुद से करेंगे। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन मैनेज दैट सम। 11th one, come on. On your own. बेटा तुम्हारी शक्लें बता रही हैं मुझे करना है, मुझे ये करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? हाँ के ना? डेट एंड शेयर होल्डर्स फंड, डेट અને શેર હોલ્ડર્સ ફંડ। बेटा डेट में हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेने का नक्की करा है ना। अच्छा, क्रेडिटर्स आएगा बिल्लू, आउटस्टैंडिंग, तो ये सारे क्या हैं? करंट लायबिलिटीज। तो वो तो एक भी नहीं जाएंगे यहाँ पर, इग्नोर। देन नॉन करंट असेट कुठे? कहना से शेयर होल्डर्स फंड को वापस हमें असेट अप्रोच से फाइंड करना है। कहना इसे वापस हमें किससे फाइंड करना है कि जहां पर हम क्या करेंगे, करंट नॉन करंट को ऐड करके टोटल असेट्स मिलेंगे और उसमें से लायबिलिटीज हमने माइनस कर देनी है। तो जरा मुझे बताओ नॉन करंट असेट्स कितने दिए हैं? नॉन करंट असेट्स आर 12 लाख। बहुत बढ़िया। करंट असेट्स आर 10 lakhs। सो कहना से 22 lakhs हो गए। अब उसमें से सीधा टोटल लायबिलिटीज उन्होंने पहले से ही दे दी है यार, 10 लाख। सो अब वो मैं टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं तो कितने हो जाएंगे अपने? 12 लाख। तो वो मेरा शेयर होल्डर्स फंड आ गया 12 लाख। लेकिन सर डेट में अभी शून्य के शून्य ही है। इधर जरा समझो, डेट्स कैसे मिलेगा? डेट्स कैन आई से आई हैव टोटल लायबिलिटीज। नाउ सी टोटल लायबिलिटीज इंक्लूड करंट एंड नॉन करंट। आर वी गिवन विद सम इंफॉर्मेशन ऑन करंट लायबिलिटीज? यस। तो कैन आई से टोटल लायबिलिटीज में से इफ आई सब्ट्रैक्ट करंट वाली लायबिलिटीज, सो आई विल गेट नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सो बेटा 10 लाख में से कितने माइनस करो? करंट लायबिलिटीज में 3 आइटम थी,
क्रेडिटर्स, बिल्लू और आउटस्टैंडिंग, तीनों के तीनों लिखो। कितने हैं? 4 लाख माइनस होगा। 4 लाख माइनस होगा। और ये जो 4 लाख माइनस कर रहे हैं उसके नीचे ये ऐसी अमाउंट लिख दो, 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1 लाख, तो 6 लाख आ रहा है। तो इट विल बी 6 lakhs डिवाइड बाय 12 lakhs, 0.5:1, 0.5:1। Debt equity ratio 0.5:1। डन 6। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। बेटा इजी शॉर्ट सम्स हो रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। आज अपने को 14 तक करना है, उसके पहले चूचा मत करना। 12th वाला सम शुरू करते हैं। चलो कैलकुलेट क्या करना है हमको? टोटल असेट टू डेट रेशियो। व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड? टोटल असेट टू डेट। फॉर्मूला चाहिए बेटा, फॉर्मूला चाहिए। टोटल असेट अपॉन डेट्स लिखो। असेट, टोटल असेट टू डेट रेशियो The formula is total assets divided by debts। अब देखो तुम में अगर बुद्धि होती ना, कॉमन सेंस होती, तो 2-3 तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है डेट इक्विटी रेशियो। सो डेट ऊपर गयो, इक्विटी नीचे आएगी यूजे। आमा पण એવું છે જો ને, टोटल असेट टू डेट। सो टोटल असेट ऊपर है और डेट्स नीचे हैं। सो वापस मेक दोस टू बाइफरकेशन, टोटल असेट फाइंड करने का और डेट्स फाइंड करने के। बेटा બે ફાટા પાડ્યા કે નહીં? What's the formula? What's the formula? टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? Total assets divided by debts। Now I'm talking about these two भाटा। हमको टोटल असेट ढूंढना पड़ेंगे और अपने को डेट्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा, टोटल असेट्स अगर हम ढूंढ रहे हैं, चलो 1 by 1 सम पढ़ना शुरू करते हैं। What about प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? वो इसमें से कहां जाएगा? खबर नहीं, पेंडिंग रखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल खबर नहीं, पेंडिंग रखते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी कहीं नहीं जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज डेट्स, या नॉन करंट लायबिलिटीज विल गो इन डेट्स। कितनी अमाउंट? 4 lakhs। बेटा उसके नीचे क्या दिया है? करंट लायबिलिटीज, तो वो भी कहीं नहीं जाएगा। अब बेटा ये तो सवाल आ गया, टोटल असेट मिले कैसे? क्या करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज विल गिव यू टोटल लायबिलिटीज। हाँ प्लस प्लस, हाँ जरा समझो बेटा, जरा समझो। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस ये सारी लायबिलिटीज करोगे तो मेरे को टोटल मिलेगा ऑफ द लायबिलिटी साइड। And unfortunately your balance sheet doesn't tally, but the concept says the total of the liability is equal to total of the asset. But what is the unfortunate thing? Our balance sheet doesn't tally. That's why we don't know this funda कि the asset total is equal to the liability totals। तो total asset को ढूंढने के लिए ये सारी चीजें लिख दो, 5 आइटम, और उनका टोटल मार दो, तो वो होगा मेरा total liabilities, and total liability is equal to total assets।
सर 1.5 साल हो गया है लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, बैलेंस शीट कभी टैली नहीं हुई, 1.5 साल का रिकॉर्ड है सर। फर्स्ट टर्म में भी सर नाम रोशन करके आए हम अपना। बेटा सबको प्लस करके अमाउंट बता दो यार प्लीज। 26 लाख। तो वो जो 26 लाख आया उसको लिखो कि वो मेरी टोटल लायबिलिटीज हैं। 26 लाख लिखवा रहा हूं ना, पप्पा लिखवा रहे हैं तुमको। टोटल लायबिलिटीज है 26 लाख और अब उसमें लिखो टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, तो 26 लाख ही हैं अपने टोटल असेट्स। शाबाश। पुट द वैल्यूज, गेट मेरे आंसर। 6.5:1, 6.5:1, 6.5:1। गजब्स। बेटा ये कौन सा सम करा? 12th। बेटा 13th वाला करते हैं, चलो 13th। प्रोप्राइटरी रेशियो ढूंढना है। बेटा बेशर्म होके पीछे पेट टर्न करके बताओ क्या है फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो का? ओनर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। ओनर्स फंड अपॉन, ट्राई मारो, चलो लेट मी सी ऑन योर ओन, आई ट्रस्ट यू। ओनर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। सर मैंने सब में 2 चीजें कर दी हैं। एक तो फॉर्मूला लिख दिया है, बड़ा क्या है फॉर्मूला? प्रोप्राइटरी ओनर्स फंड अपॉन टोटल। ओके सर मैंने 2 चीजें कर ली, एक तो ऐसा फॉर्मूला लिख लिया है और ऐसा मैंने एक टेबल भी बना लिया। बोलो कैसा स्मार्ट हूं मैं? उसके बाद सर आगे आप करवा रहे हो ना कि तुम ट्राई मारोगे। 0.67 is the right answer यार। 0.67:1। चलो बड़े एक आध का तो आंसर आया, जानकर खुशी हो रही है, खुशी। बेटा वो जो प्रोप्राइटरी रेशियो है क्या से, यहां पर ये जो ओनर्स फंड ढूंढना है, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड ढूंढना है, उसके लिए लायबिलिटी अप्रोच लाना पड़ेगा। देखो जरा चेक करो, वी हैव टू गो फॉर अ लायबिलिटी अप्रोच। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हम लेंगे ओनर्स फंड में। यस, हाउ मच? 12 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लेंगे कितना? 8 लाख। बहुत बढ़िया। फिर रिजर्व्स भी आएगा, यो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएंगे। कितना बेटा? 4 लाख। ओके देन व्हाट अबाउट नॉन करंट लायबिलिटीज? कहना से वो टोटल असेट्स में तो क्या आना चाहिए? टोटल असेट्स में करंट है ना नॉन करंट? तो ये सर ये नॉन करंट लायबिलिटी क्यों दी है मुझे? इग्नोर करने के लिए, कुछ काम का नहीं है। इग्नोर नॉन करंट लायबिलिटीज, वी डोंट वांट इट। व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटीज? वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट दैट। अरे टोटल असेट कैसे मिलेंगे?
non-current asset, that is long-term asset plus current asset. या तो वो जो करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटीज दी है तो तुम असेट अप्रोच से भी आंसर लेके आ सकते थे. अरे बोलो ना यार, दोनों वे में तुम्हारा सेम आंसर आएगा. कितना आ रहा है? 24 लाख. और इकडे ये कितना है? नॉन करंट कितने है? 12 અને પછી 24 36. तो ओनर्स फंड कितना आएगा? 24 डिवाइड बाय 36. तो कितना आ रहा है? 0.67:1. It's 0.67:1. Well, let's go to the last sum for today. Interest coverage ratio 14. The last sum, please try. बेटा मैं करूं? बेटा तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है. चलो कॉपीज करिए. बेटा चलो कॉपीज करिए. बेटा व्हाट्स द रेशियो वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट? Interest coverage ratio. But what's interest coverage is? कि भाई if we have taken the loan तो do we have that sufficient profit to pay off our interest? तो मेरा फॉर्मूला क्या था? Profit before interest and tax upon interest on long term debt. अब मुझे देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले से ही दे दिया है. हाउ मच इज माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 7,50,000. अब उसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे टैक्स का अमाउंट. हाउ मच इज द टैक्स अमाउंट? 2,50,000. उसमें हम क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन्स.
तो 2 लोन दिए हैं, 2 लोन है अपने पास, एक है बैंक लोन और एक है डिबेंचर्स। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20 lakhs का कितना परसेंट? तो वो 2 लाख हमें जोड़ने हैं। अरे बची इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो कितना है? 12%। लेकिन अमाउंट 10 lakhs का 12%, 1,20,000। तो ये सारी ऐड कर दो प्रॉफिट में, 13,20,000। सो 13,20,000 कहना से इंटरेस्ट ये रहा, ऑलरेडी ढूंढ लिया हमने 3,20,000। सो कितना आंसर आ रहा है? 4.125 times। वो 4.125 4.125, मतलब मेरा प्रॉफिट 4 टाइम्स है। जो भी मेरा इंटरेस्ट भरना है उससे मेरा प्रॉफिट 4 गुना है। तो हम आराम से हम पे कर पाएंगे। We would able to pay the interest आराम से। बेटा होमवर्क में तुम्हें क्या करना है? इलस्ट्रेशन 11 से लेके इलस्ट्रेशन 23 तक, बस इलस्ट्रेशन 11 से लेके इलस्ट्रेशन 23 तक